जी वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਹਾਲੇ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਵਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋ ਵਿਧਾਨ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ 17ਵੀਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਤੋ ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੰਤਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਛੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ karingurbani.com ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਲੇਖ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ karingurbani.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਘਰ ਇਨ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਇਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾਈਏ, ਨੈਟ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਘਰ ਇਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਛੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਛੰਤ ਨੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਘਰ 17 ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਛੰਤ 8 ਨੇ। ਛੰਤਾਂ ਦੇ 8 ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 8 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਛੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਛੰਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੰਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਛੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਛੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ 8 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਛੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਛੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਛੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੁਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਛੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੰਤ ਵਿੱਚ 6 ਤੁਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਾਂ 4 ਤੁਕੇ ਛੰਤ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 6 ਤੁਕੇ ਛੰਤ ਹੋਣਗੇ। 4 ਤੁਕੇ ਛੰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੰਤ ਵਿੱਚ 4 ਤੁਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 6 ਤੁਕੇ ਛੰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੰਤ ਵਿੱਚ 6 ਤੁਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 4 ਤੁਕੇ ਛੰਤ ਵਿੱਚ। ਛੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲਾ 4 ਤੁਕੇ। ਛੰਤ ਦੀ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹ ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਛੰਤ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਛੰਤ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਛੰਤ ਕਰ ਦੂਜੇ ਤੇ 8ਵੇਂ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਰੀ ਤੁਕਾਂ ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਸਰਲ ਬਾਤ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਹਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਖਰੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਹੋਣਗੇ 2 ਸੁਨੇਹਾ 1, ਜਾਂ ਘਰ ਹੋਣਗੇ 3 ਸੁਨੇਹਾ 1। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਬਣੇਗਾ, ਜਾਂ 2 ਘਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਬਣੇਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਬਣੇਗਾ। 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੰਤ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਕਿ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਅੰਤਰ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੰਤ ਨੂੰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੰਤ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਿੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਛੰਤ ਕਰ ਪਹਿਲਾ 4 ਤੁਕੇ। 4 ਤੁਕੇ ਛੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਛੰਤ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਚ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ 2-2 ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਛੰਤ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸਲ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੰਤ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ 2 ਘਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਛੰਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ 1-2 ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਛੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ 4 ਤੁਕੇ ਛੰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਛੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ 4 ਤੁਕੇ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਛੰਤ ਦੇ ਹਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਏ। ਇੱਕ ਛੰਤ ਵਿੱਚ 4 ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਆਂ। ਇਉਂ ਛੰਤ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ 4 ਸੁਨੇਹੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? 4 ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਤੁਕ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਛੰਤ ਦੀ ਸੇਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ 4 ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆ ਗਈ ਬਾਤ ਕਿ ਛੰਤ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ 2-2 ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੰਤ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਆਓ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੰਤ ਕਰ ਪਹਿਲੇ 4 ਤੁਕੇ ਛੰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ 2 ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਗਾਵਣਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਛੰਤ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਛੰਤ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਅੰਗ 537 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਇਹ ਛੰਤ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਠੜਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ।
ये पहला घर है। इस पहले घर विच की कहा जा रहा है कि गुरमत गुरु दी मत लैण दे नाल मन विच उस अमृत रस दा वासा हो जाता है। उस ओ अमृत आ वसदा है। मेरी जिंदड़ीए, ये मेरी जिंदड़ीए। जदों असी छंता दे घरां दी विचार कर रहे सी, कोई इहो जिहा संबोधनी शब्द आ गया, मेरी जिंदड़ी इत्थे आ गया। इस नूं पहले असीं विचारिया सीगा वणजारिया मित्र। वणजारिया मित्र एक संबोधनी शब्द दूसरे छंत च आया। इस छंत च मेरी जिंदड़ी है। इसने घर पहले तक ये साडा इत्थे लाता भी इत्थे तक घर पहला सी करिए संबोधन करके अपने आप नूं, पर साडा स्नेह दा एक बहुत अहम अंग साडा हो चुकिया है कि गुरु दी मत लैण दे नाल मन करके, मन विच जदों गुरमत दा ये अमृत दा वासा हुंदे हो जाए, इत्थे हाले गल चल रही है, हो जाए तां मुख अमृत बैण अलायरा। इहो जिहा प्राणी, इहो जिहा जीव अपने मुख तो उसके बोल अमृतमयी हो जाते। बोल बैण अलाए राम, वो बोल बोलदा ही अमृतमयी है। तो इस दे नाल सानू एक समुचा सुनेहा, ये वाला सुनेहा तुक दे पूरी तुक विचों मिलिया, और ये सुनेहा दो घरां दे मेल चों मिलिया। पहला घर सी कि असी गुरु दी मत अपने मन विच वसा लीए, अमृत वसा लीए, मेरी जिंदड़ीए। ये पहला घर है, पर ये पूरा हले सुनेहा नहीं होया। दोने घरां नूं मिला के मुख इहो जिहा प्राणी फिर अपने मुख तो भी अमृत बोल बोलता है। उसके मन विच वस गया है, वो हुण बोल बोलता है। तो ये एक पहला सुनेहा होया। पहली तुक दो घर एक सुनेहा। दूसरी तुक अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़ीए। हुण उस जिहड़ी बाणी, जिहड़े बैण अलाए राम है ना, जिहड़ी अमृत बोल ने, हुण अगली गल उत्थों तुरी है। अमृत बाणी, हुण भगत जन, वो भगत हो गया जिसने गुरु दी मत लैके मन विच वसा लिया, वो भगत जन। हुण वो अमृत बोल रहा है, ते अगली गल उसदे बोलां नूं सुणीए, मन ला के मन सुणीए। मन दे नन्ने नूं सिहारी जदों लगदी है, उस दे नाल एक अखर की जुड़दा है, मन ला के, मन राही, मन द्वारा, वो उसदी सिहारी विच जुड़िया होया है। वो हुण पहला, हुण दूजी तुक शुरू हुई ते सुनेहा शुरू होना है। शुरू सुनेहा होया ते पहला उसदा भाग की है कि भगत जन अमृत बोलदे ने, उसदे बोलां विच अमृतमई बोल ने। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़ीए, जिसनू दूसरा भाग, दूसरा पड़ा, अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़ीए। इत्थे रुकना है, मन सुणीए हर लिव लाए राम। तो इस तरह असी ये दूजा सुनेहा सानू मिलिया। जदों ये भगत दी अवस्था, ये साध अवस्था, ये भगत अवस्था जदों प्राप्त हुंदी है, तां इउं है कि जिस तरह मैनू मेरा चिरां तो विछड़िया होया मेरा प्रभु मैनू मिल पिया होवे। चिरी विछुन्ना हर प्रभ पाया, चिरी विछुन्ना हर प्रभ पाया। जिहड़ा विछड़िया होया सी, वो हुण मैनू, हुण अगला भाग जदों आएगा, स्नेहा पूरा होएगा, वो मैनू मिल जाना है। गल मिलिया, मैं तां जफियां पा पा के मिला सच्चे पातशाह, मेरे तुसी विछड़िया होया मेरा प्रभु, गल मिलिया सहज सुभाए राम। मैं ते उसदे उसनू गल ला ला के मिला। ते ए स्नेहा ता होया, कित्थों शुरू होया? चिरी विछुन्ना हर प्रभ पाया। पाया किवें? कि मन ला के मैं वो अमृत बोल सरवण कीते। सरवण बोल निकले किदां? पहला, फिर पहले ही स्नेह च गुरमत मन अमृत उठड़ा। गुरु दी मत अपने मन ते धारण कीती, वो अमृत वसिया, उठड़ा वसिया। मेरे बोल अमृतमई होए। मेरे जिहड़े बोल अमृतमई होए, मेरे साध संगत विच बोल इस तरह दे तुरे, मैं सरवण कीते, मन सुणिए हर लिव लाए राम। तो इस तरह असी उन्हां नूं असी सरवण कीता। ते फिर इहो की होया? तीसरा सुनेहा, चिरी विछुन्ना हर प्रभ पाया। मैनू चिरा तो विछड़िया होया मेरा प्रभु,
ਮਾਣੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲ ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਰਾਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਉਂ ਕਿ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਮੇਲ ਕਰਾਂ। ਆਖਰੀ ਤੁਕ, ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਵ ਜੁੜ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਿਵ ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਹਤ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ ਰਾਮ। ਵਜਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਨਹਤ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ ਰਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਤੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਨਹਤ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਰੁਣ ਚੁਣਕਾਰ, ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਝਰਨਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਅਨਹਤ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਇਆ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਅਨਹਤ ਮੈਂ ਆਹਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਨਹਤ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ ਰਾਮ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। तो इस तरह दो दो घरां दा एक एक सुनेहा किस तरह परो के असी ये छंतां दा, जो छंत घर पहला ते फिर देख लिया चार तुके है ते घर पहला ते हर तुक विच दो दो घर मिलणगे, असी ढूंढांगे ते सानू हर घर ये सिर्फ इत्थे नहीं, छंत घर पहला चार तुके श्री गुरु ग्रंथ साहब जिथे भी होणगे हर तुक विच सानू दो दो घर इस तरह मिलणगे। पुरातन समय विच सिंह जिहड़े लड़ीवार स्वरूप तो पाठ करते सी, इसे करके हुंदा सी क्योंकि उत्तों पढ़ के छंत कर पहला एक घर दी जिहड़ी नॉलेज है, ये संगती नॉलेज सी। संगत विच सब नूं पता सी कि छंत कर पहला जे चार तुके है ते ये दो दो कर, और जिथे जिंदड़ी आया उत्थे लड़ीवार विच भी रुक गए ते अगों उन्होंने दूसरा पढ़िया। तो इस तरह ये चलती सी बात। तो यह है छंत कर पहला चार तुके दा। हुण आपां अगे चलदे हां 6 तुके छंत। दो तरह के छंत होंदे ने छंत कर पहले विच। चार तुके छंत दा विधान, उसका चलन, उसका सुनेहा, उसकी सेध असी किस तरह माननी है, किस तरह उसनूं असी अंदर वसाउणा है, किस तरह उसनूं समझना है ते किस तरह पाठ करना है, किस तरह कीर्तन करना है। छंत कर पहले दे चार तुके पदे दा। हुण आइए छंत कर पहले दे 6 तुके पदे दा। 6 तुके छंत विच 6 तुका होणगियां। तो ये सीधी बात है। पहली बात, छंत दी हर तुक विचों एक गुरमत दा सुनेहा। एक गुरमत दा सुनेहा तां हर घर विचों मिलना है। छंत दी ये पक्का विधान है कि हर तुक विचों एक सुनेहा मिलना है। देखण दी बात सिर्फ ये है, घरां दा वखरेवा, घरां दी क्लासीफिकेशन ये है कि जिहड़ा वो सुनेहा है एक घर नाल मिलना है कि दो नाल मिलना है कि 3 नाल मिलना। हुण इत्थे आपां जिस तरह पहले विधान कीता है, हर तुक विचों दो दो मिलने ने चार तुके छंत विचों। हुण इत्थे किस तरह कि छंत दियां पहलियां दो तुकां विचों दो दो घर होणगे, तुकां 6 होणगियां ते ये छंत घर पहला। हुण इहदे विच असीं देखीए कि जदों 6 तुक, क्योंकि 6 तुके छंत विच घरां दी गिणती बहुत अहम है, क्योंकि 6 तुके छंत घर पहले विच भी ने ते घर 8वें विच भी ने। तां उहदा च उन्हां दे वखरेवा सिर्फ इत्थों आएगा कि छंत घर दूजे दा की फर्क है पहले नालों। अज असीं छंत घर पहले दी बात करदे हां ते इस नूं वसा लईए कि हर पहलियां दो तुकां 6 तुकां है ते पहलियां दो तुकां विच दो दो घर होणगे। ते हुण इहदे च इहनूं अगे चलदे हां कि पहली तुक विच दो दो घर ते जे तीजी तुक विच एक घर ते ये पहला प्रकार है छंत घर पहले दा। जे तीसरी तुक विच दो घर यानी दो 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 तां ये दूसरा प्रकार है। जे तीसरी तुक विच 3 घर ने ते ये तीसरा प्रकार है। ये कुल 3 प्रकार होंदे ने, पर तिन्नां प्रकारां विच पहलियां दो तुकां विच दो दो घर जरूर होणगे। तां इस दे नाल इसदा घरां दे अगों प्रकार हो गए। जिस तरह शब्दां दे घरां दे प्रकार ने, उसे तरह ही छंतां दे घरां दे भी प्रकार ने। पर एक बात जिहड़ी इसदा विधान की है कि छंत घर पहला है ते पहलियां दो तुकां विच दो दो घर जरूर होणगे।
ਤੇ ਜੇ 6 ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ 2-2 ਘਰ ਨੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਤੁਕਾਂ 'ਚ 2-2 ਘਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਛੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। तो इस तरह आप अगे चलते हैं। हुण असीं इहो जिहा छंत देखिए जिहदे विच हुण 3 प्रकार होए साडे कोल। पहला प्रकार है कि पहलियां 2 तुकां विच 2-2 कर ते होणे ही होणे ने, क्योंकि छंत कर पहले दी है। तीसरी तुक विच 1 है ते पहला प्रकार है, 2 ने तां दूजा प्रकार है, 3 ते तो इहनूं होर तां शब्दां च इस तरह भी कह सकते हैं कि तीजी तुक विच 1 भी कर हो सकदा है, 2 भी हो सकदे ने ते 3 भी हो सकदे ने, पर हर प्रकार दे विच पहलियां 2 तुकां विच 2-2 कर ही होणगे। तो इस तरह 2-2 1 वाले प्रकार दे श्री गुरु ग्रंथ साहिब च जिन्ने भी छंत ने वो सारे इत्थे आपां सामने सिर्फ उन्हां दी गिणती इस तरह रखी है कि पहलियां 2 तुकां विच 2-2 कर ते तीसरी तुक विच 1 कर। अगों 1 2 3 हो सकदा है, पर साडी तां छंत कर पहला पहलियां 2 तुकां तो ही स्थापित हो जाण। ये हर तुक विच घर किन्ने ने ये असीं इस दी विचार कर चुके हैं। हुण जिवें जिवें नाल लाएगी नाल दोबारा उसनूं दोबारा भी करांगे, पर विधान वही चलेगा जिहड़ा आपां सिर्फ 3 गल्लां ने कि तुक विच 1 कर है, कि तुक विच 2 कर ने, कि तुक विच 3 कर ने। आओ आपां देखिए किस तरह बनते हैं। साडे सामने एक आया ये छंत कर पहला की गुरु साहब ने किते सीधा स्पष्ट लिखिया। ये देखो अंग 541 दे बिहागड़ा महला 5वां छंत कर पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। तो इत्थे गुरु साहब ने छंत कर पहला बिल्कुल इस तरह स्पष्ट तौर ते सिरलेख विच सुभायमान कीता है, छंत कर पहला। हुण देखो 6 तुका छंत। हर का एक अचंभाव देखिया मेरे लाल जियो। मेरे लाल जियो देखो दूसरा संबोधनी शब्द आ गया। सिर्फ पहलियां 2 तुकां च गुरु साहब ने संबोधनी शब्द दे के इस दे जिहड़ा उस विधान नूं स्थापित भी दोबारा होया कि इत्थे कोई भुलेखा ना रहे। पहलियां 2 तुकां च 2-2 कर। हर का एक अचंभाव देखिया मेरे लाल जियो। एक इहो जिहा ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਅਚੰਭਤ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕਮ ਜਿਕਮ ਨਿਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਤਜ ਉਤਪੁਜ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ हर प्राणी दे नाल किस तरह एक न्याय हो रहा है। जो इत्थे करदे आ उरवार पार इत्थे दा ओथे दा सारा संपूर्ण न्याय किवें हो रहा है। तो इस छंत दे पहले तुक दी पहला सुनेहा इस प्रथा है। हर का एक अचंभा देखिया मेरे लाल जी। इत्थों गल तोरी एक की अचंभा देखिया, जो करे सो धर्म न्याय रा। बिल्कुल धर्म दे पद्धर ते अध्यात्मक पद्धर ते पूर्ण न्याय हुंदा है। ये है अचंभा। तो ये दोने मिला के ये सुनेहा इहदे चों ये पता लग्या कि गुरु साहब दा अकाल पुरख दा अजिहा एक अचंभा है, अजिहा सानू अचंभा करने वाला, सानू हैरान करने वाला एक इहो जिहा धर्म न्याय है। एक इहो जिहा कि मन करके तन करके सारियां दा जो 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 जिस तरह बीजांगे उस तरह पावांगे। तो ये न्याय धर्म दे पद्धर ते अध्यात्मक पद्धर ते वरता रहे ने। अगली गल अगला सुनेहा, हर रंग अखाड़ा पायो न मेरे लाल जियो। इहो जिहा अखाड़ा असी खाड़ा खेड दा खाड़ा बनाने आ, इहो जिहा अखाड़ा पातशाह ने पायो इहो जिहा पाता पातशाह ने कि आवण जान सबाए राम। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह लोग आ रहे ने ते किस तरह जा रहे ने। ये आवन जान सवाए राम सार सरबत संसार इस अखाड़े दे विचों दी मतलब पैदाइश ते जाना ते ओ सारे जो दुनिया दी लोकाई है इस अखाड़े दे विचों निकल रही है। दोनों नूं मिला के ये 2-2 घरां दा सुनेहा पहली 2 तुकां विच एक छंत कर पहले दे सारियां 6 तुके छंत विच पहले च 2-2 कर होणगे। इत्थे मेरे लाल जियो दे नाल
पातशाह ने इस गल दी मोहर लाई। हर का एक अचंभव देखिया मेरे लाल जी। ते इसका गायन भी इत्थे इस तरह रुक के और इसका पाठ भी इस तरह रुक के, जो करे सो धर्म न्याय। तो इत्थे उस तो बाद असी पहला पहुंच रहे हैं, पहला सुनेहा सानू मिल चुके। अगला सुनेहा पातशाह दूसरी तुक विच, हर रंग अखाड़ा पायो मेरे लाल जियो, आवण जान सवायरा। इस अखाड़े विचों, इस खेड, ये जो खेड रची है उसका अखाड़ा बनाया, उसदे विच आ रहे ने जा रहे ने, आ रहे ने जा रहे ने, ते सारियां दे नाल धर्म न्याय हो रहा है। आवण ता जाना तिन है किया, जिन मेदन सिरजिया। हुण जिन जदों असी विचार कीते सी किवें दो भागां नूं ओह शब्द मिला के एक कर बनाते ने। जिन, जिसने ये सारा सिरजना कीती है अखाड़े दी, उन्हें ही इहदे विच आवण जावण दा सारा इंतजाम कीता। आवण ता जाना तिन है किया, जिन मेदन सिरजिया। ये एक कर, हुण एक कर हो सकता है क्योंकि एक पहलिया दो तुकां च दो कर होने जरूरी ने। एक ना मेल सतगुर महल बुलाए, एक भरम भूले फिर दिया। हुण एक ना ते एक ने, एक नूं ऐ हो रहा ते एक नूं ऐ हो रहा, ते इस करके ये भी एक कर बन गया। दोनों दे एक ते एक दे नाल ये दोनों दा संबंध की ये शब्दां दे नाल। अंत तेरा तू है जान। ये सारे दा जदों इस खेल चों निकलते ने उसका अंत की होंदा है, निवेड़ा की होंदा है, ये तेरा तू जाने। तू सब में रहा समाए। ये दोनों बातां भिन्न भिन्न ने, दो गल्लां हो रही हैं। ये सारे खेड दी अंत तू जानदा है ते तू सारियां विच है, जेड़े आ रहे ने जेड़े जा रहे ने, ये दो बातां ने, इस करके दो कर। सच कहे नानक सुनो संत हो। हुण इत्थे सुनो संत हो, ये अपना संबोधन जदों होया ते हर वरतै धर्म न्याय। ते एओ सारे हे संत जनों देखो कि हरि दा ये धर्म है, परमात्मा दा ये अकाल पुरख दा धर्म न्याय एओ वरत रहा है। तो ये 6 तुकां विच, जिहदियां पहलियां 2 तुकां विच 2 कर जरूर हन, ते हर तुक विचों सानू एक सुनेहा मिल रहा है। इस छंत कर पहला 6 तुके दा ये इस तरह सी इसका विचार चलती है। तो आखिरी 10 मिनट ने असी दूसरी प्रकार देखते हैं। ये सारे जिहड़े छंत ने सिर्फ ग्रंथ साहब दे, पर पहलियां 2 तुकां विच 2 कर, पर तीसरी तुक विच भी 2 कर। इस करके इसनूं सिर्फ अकादमिक पढ़ाई लई असी कहने हैं दूसरे प्रकार च आ गए, पर छंत कर पहला ये हो गया जदों पहलियां 2 तुकां च 2 कर। आओ देखिए इत्थे फिर गुरु साहब ने पहलियां 2 तुकां च, केवल पहलियां 2 तुकां च वो सानू संबोधनी शब्द दिता। दूजे पहरे रैन केवण जा रहा मित्र, विसर गया त्या। दूसरे पड़ाव च जदों तू आया जिंदगी दे, ते तू मतलब पैदा हो गया ते तैनू ध्यान विसर गया जिहड़ा तेरी लिव लगी हुई सी। हथों हथ नचाइए बन जा रहा मित्रा, ज्यों जसदा कर कान। जिवें कान नूं उत्थे नचाउंदे सारे, इत्थां सारे उस नवें जमे प्राणी नूं दूसरे पैर च जिहड़ा आ गया, दूजे पड़ाव च आ गया, जम पिया, ते उस नूं हथों हथां च नचाउंदे ने सारे। तो इउं ये 2 हो गए। वणजारिया मित्रा ने करता, जे विच ना हुंदा हथों हथ नचाइए जो जसदा कर कान, एक कर बनना सी, बिल्कुल बनना सी एक कर, क्योंकि वो जोने जुड़े हुए ने। हथों हथ नचाइए जो जसदा कर कान, ये बिल्कुल जुड़े हुए ने। पर वणजारिया मित्रा ने इसकी मोहर लाती भी ये 2 कर रखे जाने। हथों हथ नचाइए प्राणी, ये एक क्रिया है। मात कहे सुत मेरा, ये दूजी क्रिया है। वो कह रही है, वो नचा रहे ने। तो ये 2 कर होए। चेत अचेत मूड मन मेरे, चेत कर उसका ध्यान तर, अंत नहीं कछ तेरा, ये 2 चीजा ने। जिन रच रचिया तिसे न जाने, ये 2 संबंध की शब्दां ने कर एक बनाना सी, पर दोनों ने मिला के एक बनाया ते एक कर साडे कोल होर पिया। जिन रच रचिया तिसे न जाने, मन पीतर तर ध्यान, मन पीतर पर ध्यान फिर दूजा कर। कहो नानक प्राणी दूजे पहरे, संबोधन विसर गया ध्यान। इको कर तो इको बात इको कर। ये ओही विधान जिहड़ा असीं पहले छंतां दे तुकां विच किस तरह कर हुंदे ने, इहदे च जिहड़ी विचार कीती सी उहदे विच साडे पास ये आया। ते हुण साडे कोल इको प्रकार होर रह गया,
ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਚ ਦੋ ਦੋ ਕਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੰਤ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਤੁਕ ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਕਰ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੰਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਸ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਛੰਤ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ, ਪਿਰ ਸੰਗ ਕਾਮਣ ਜਾਣਿਆ। फिर मेरे आसपास ही है, ए कामण ने जान लिया। ए अपने आप विच संपूर्ण कर हो गया। फिर संग कामण जानिया, ए किस तरह हो सकिया? गुर मेल मिलाई राम। ये दूसरी बात है कि गुरु ने ए मेल मिलाया। कामण ने जानिया एक बात है, गुरु ने ए मेल मिलाया दूजी बात है। दो कर अंतर शब्द मिली, जेकर होंदा अंतर शब्द मिली तपत बुझाई राम, फिर होना सी एक कर। ये सहजे ने दूसरा कर स्थापित करता। किस तरह? अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम। ते सहजे तपत बुझाई राम ने सहजे ने एक साडे को दूसरा कर खड़ा किया। हुण तीसरा तीन कर किवें हुंदे है? शब्द तपत बुझाई, अंतर शांत आई, सहजे हर रस चाखिया। बुझाई ते आई दे ईड़ी नूं बिहारी इको जी जदों आई तां उसने छंतां विच केवल चलदा है कि तीन घर हमेशा ही उदों होणगे जदों पहले दो दा उच्चारण बिल्कुल उसका एक आखिरी अखर दा इको जिहा होएगा। शब्द तपत बुझाई, अंतर शांत आई, सहजे हर रस चाखिया। तीसरा कर भी होएगा तो तीन कर भी। इस तो बाद एक होर अगली तुक भी तीजी हो सकती है। पहली दो तुकां तो बाद कर एक दो तीन हो सकते ने, पर साडा कर जिहड़ा है पहलियां दो तुकां स्थापित हो चुके हैं। कर की है? मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणे, सच्चे शब्द सुभाखिया। णे दे उच्चारण दे नाल ये भी तीन हो गए। पढ़ पढ़ पंडित मोनी था के भेखी मुक्त न पाई। भेखी कौन है? पंडित ही है। इस करके सारे दा एक कर। पढ़ पढ़ पंडित मोनी था के उन्ना भेखिया ने मुक्त नहीं पानी, भेखी मुक्त न पाई। इस करके एक कर। नानक बिन भगती जग बौराना। नानक ये संबोधन है क्यों कक्के नूं औंकड़ नहीं है, इस करके कक्के नूं सिहारी भी नहीं है। जदों कक्का मुक्ता होएगा संबोधन नानक बिन भगती जग बौराना, गल हो गई। संबोधन दे नाल एक विषय खत्म, संपूर्ण हो चुके हैं। दूसरा विषय दूसरा कर है, सच्चे शब्द मिलाई। इस करके पहला कर की होया? नानक बिन भगती जग बौराना। ये एक बात है कि जग बौरा फिर बनया फिरदा है, पर सच्चे शब्द मिलाई दूसरी बात है। इस करके दूजा कर है। तो आखिरी चंद मिनट ने ये सारी विचार जो सी छंत कर पहले दी और छंतां दे विच एक जड़ा विधान, एक तां सी पक्का विधान है देखिया कि हर तुक विचों एक सुनेहा, और असी घरां नूं जोड़दे नहीं हां। 2 जमा 2 करके 4 कर चौथे विच, 3 जमा 2 करके 5 कर पंजवें विच। ये शब्दां दा चलन है। छंतां की जात वखरी है, छंतां का चलन वखरा है। तो छंतां दे विच इत्थे गल आई कि छंतां दे शब्द विच घर जोड़ने नहीं ने, घरां दी तरतीब स्थापित करनी है। तरतीब यह है कि पहलियां दो तुकां च दो दो कर होणगे। तो इस तरह एक घर स्थापित होता है। तो यह विचार सी जी घर पहले दी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।